बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें गौर व शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। नहीं जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिया, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिया। किबला इसका है ना, तो किसी हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है। कोई डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें, देखिए वो गंदा जहन तो नहीं बंदा, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। ये ट्रिबल तो तोबा तोबा, आप तो समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ये ट्रिबल सवारी इतना खतरनाक, ये चिपक कर बैठते हैं और स्पार्किंग नहीं होती हो, ये बहुत मुश्किल है। और स्पार्किंग नहीं होती हो, ये बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल अल्लाह के साथ शिरक कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? ये तुम्हारी दुआएं कबूल कर देगा? है बताना। और मोहब्बत की हुंदी ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਟਪਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਹੈ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਰਾਮਾਇਣ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਸੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ डिस्कशन छेड़ने की कोशिश करते हैं। आज देखिए, अपने अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, खुद समझने जाएंगे तो इधर उधर निकल जाएंगे, जैसे बहुत सारे निकल गए। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमजानुल मुबारक में कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ, आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं की, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें गौर व शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। नहीं जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टरी मेडिकल की किताब आप बगैर माहिर के नहीं पढ़ते, कुरान करीम ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਉਸ ਕੋਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੂਗਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਲ ਬਣੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਲ ਬਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕੋ, ठीक है। ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। मगर मार के आप क्यों पढ़ेंगे? तर्जुमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए है। साहब ने कहा आप तर्जमे से पढ़े, मैं कहता हूँ सिर्फ तर्जमे से कभी कुरान को मत पढ़िएगा, आप हिदायत की तरफ नहीं आएंगे बल्कि गुमराही की तरफ चले जाएंगे। तिलावत कुरान करना तो हर बंदे का हक है, लेकिन अगर वो तिलावत के साथ तर्जुमा भी पढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए वो किसी आलिम की ज़ेरे निगरानी पढ़े। फायदा है बगैर उस्ताद ओके, अच्छा हो सकता है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ वजन होवे, किस कॉन्टेक्स्ट दे बेस ते ये गल कह रहे हैं मैनू नहीं पता, हो सकता है, ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल। आसान भी है जी। ज़रा तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि एक गैर मुस्लिम आपसे आकर ये कहे कि तुम्हारी ये मुकद्दस किताब कुरान पाक बरे रास्त मत पढ़ो वरना इधर उधर निकल जाओगे, आप उस शख्स को क्या जवाब देंगे? यकीनन आप उससे ये कहेंगे कि ये अल्लाह का दुश्मन है, मुझे बेकाना चाह रहा है, कुरान करीम तो हिदायत की किताब है, इसको पढ़कर तो मुझे तौहीद समझ में आती है, अल्लाह का तारुफ होता है, हिदायत मिलती है, गुमराही और कुफ्र से निजात मिलती है। उल्टा ये बंदा शैतान है जो कि मुझे इस हिदायत की किताब से दूर करके अपनी तालीमात देना चाहता है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि यही काम कोई मुसलमान आलिम दीन अपनी आवाम के साथ करे और उनको ये कहे कि कुरान पाक को बराह रास्त मत पढ़ो, हदीस को बराह रास्त मत पढ़ो वरना तुम गुमराह हो जाओगे। वो शख्स जिसकी हम इज़्ज़त इसीलिए करते हैं, उसको मिंबर पर बिठाते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के दीन की तबलीग करे, अगर वो अपनी आवाम को ये बातें करेगा तो क्या इसका दिफा करना चाहिए?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ, ਬਾਹਰ प्रॉपर्टी ਲੈਣੀ ਹੈ। सारे के सुपने होंगे ना, गोल होंगे, हमें लगता है इन्होंने गोल ओवल या फिर उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। और बिल्कुल यही काम मौलाना इलियास कादरी साहब भी कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनकी नीयत के अंदर मुझे कोई शक नहीं, वो एक नेक और शरीफुन नफ्स इंसान है, लेकिन अपनी जहालत और कम इल्मी के अंदर जो गुमराही वो लोगों के अंदर फैला रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसी ऐसी बिदात इन्होंने दीन के अंदर दाखिल की हैं कि अल्लाह की पनाह। केला छीलने का मदनी तरीका, पीली चप्पल के फ़ायदे, खीरा काटने का मदनी तरीका, स्पार्क से बचने का तरीका, पेट्रोल के बरकत का वजीफ़ा, दादा साहब की घोड़ी का वजीफ़ा वगैरह वगैरह। पीले जूते से फिक्रें कम होती है, टेंशन कम होता है, और ब्लैक शूज से टेंशन बढ़ता है। ओ ताइयों ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਊਮਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। यार क्या कर रहे हैं ये वजन केले हैं ना, तो बेटे यूं रखेंगे तो ये वजन से या ये दबकर तो पिचक जाएंगे। अच्छा आपने देखा होगा ये ठेले वाले बेचने वाले तो ये अगर वो करे तो ये रखते हैं तो अच्छा। फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दी, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिया, किबला इस तरफ है ना, तो किसी हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इसको डोरी में डालकर कहीं मतलब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। अर्थ की जगह पर हाथ रख दे, ठीक है जी, और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। एक कोई बुजुर्ग होंगे, बोले खीरा बेचारा एकदम प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले सब्ज सब्ज। अच्छा अब इस बेजर खीरे को बस वो लगे रहते हैं तो छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा नहीं कांपता। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो भैया फिर खीरे का क्या करें? हाँ खीरे का मैं इसको धो ले, धो कर इसको बस काट ले, जरूरत निकाल दी, बाकी गोल गोल कतले बना ले इसके, या लंबाई में इसकी फांक बना, लंबाई की फांक ज्यादा आसान है। मतलब मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पे डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें कि कहीं वो गंदा जहन तो नहीं बन रहा, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। ट्रिबल तो तोबा तोबा, आप तो समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ये ट्रिबल सवारी इतना खतरनाक, ये चिपक कर बैठते हैं। ट्रिपल सवारी ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਚਲਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ, ਓਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਿਟ ਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। और स्पार्किंग नहीं होती हो ये बहुत मुश्किल है, और स्पार्किंग नहीं होती हो ये बहुत मुश्किल है, तो बिल्कुल यानी कि ऐसा नहीं क्या करें। ये सब कुछ दीन नहीं है बल्कि दीन इस्लाम का मजाक है जो कि ये लोग अपनी कम इल्मी के अंदर बना रहे हैं। और आप सही मैं हुणे कह के डे ना कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, कमाल है यार मौलवी साहब। इमेजिन करें कि गैर मुस्लिम इसको देखकर क्या तासुर लेते होंगे। देखो यार मेरा की आया पर आई नो दैट मैनू इस्लाम की कदर है, सॉरी टू से, बट देखो हासा निकल गया उस बंदे दी गल्लां दे करके, ठीक है, लेकिन उस बंदे दियां इहो जिहियां जाहलाना जिहड़ियां गल्लां है ना, ओहदा इस्लाम नाल कोई लेना देना नहीं। वो कौम जो कि पहले ही सालों साल कुरान पाक को नहीं खोलती, सिर्फ कसम खाने के लिए या फिर बेटी की शादी पर इसको बरकत के लिए इस्तेमाल करती है, आप उसे ये बताएंगे कि तुम्हारा इसको बराह रास्त पढ़ना तुम्हें गुमराह कर देगा, तो क्या वो कभी भी इसे खोलकर पढ़ने के बारे में सोचेंगे भी सही? कभी भी नहीं। और ये बिल्कुल वही तरीका है जो कि इससे पहले यहूदी रब्बई और ईसाई पादरी भी अपना चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी आवाम को यही कहा था कि आम लोग नापाक होते हैं, तुम्हें अल्लाह तक पहुंचने के लिए पाक लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि अल्लाह के साथ राब्ते में रहते हैं, और वो हम लोग हैं, क्योंकि हम अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। हम पर नवाजिशें करो, हमारी मुठियां गर्म करो, हमें नजराने ला कर दो, और हम अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। ਉਹ ਬਾਈ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ
ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਸਟ ਰੈਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਯਾਰ, कोई कुछ नहीं हो सकता अभी अपनी दुनिया का। नतीजा ये निकला कि बंदे और अल्लाह का ताल्लुक खत्म हो गया और इनके दरमियान रब्बई और पादरी आ गए और ये अपनी अवाम को जो कुछ भी कहते थे इनका हुक्म अल्लाह के हुक्म के बराबर दर्जा रखता था और कोई भी इन पर सवाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उस दौर के अंदर आम अवाम को ना तो तौरात पढ़ने की इजाजत थी और ना ही बाइबल। आम लोगों को जब भी कोई मसला होता या कोई सवाल होता तो इन्हीं आलिम दीन के पास जाकर इनसे सवाल करते, और यहूदी आलिमों के बारे में तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इन लोगों ने सिर्फ दुनिया के माल की खातिर अल्लाह पाक की आयतों को या तो बेच दिया या फिर इनको बदल दिया। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने तौरात के अंदर सूद को हराम करार दिया था, लेकिन यहूदी उलमा कराम ने अपनी अवाम को ये जायज़ करार दे दिया, और इसी वजह से अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर इन यहूदी उलमा को उलमा सू कहकर मुखातिब किया। इसलिए एक बार एक मशहूर साहबी हज़रत अदी बिन हातिम ताई जो कि क्रिश्चियन से मुसलमान हुए थे, इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर अर्ज़ किया कि कुरान पाक की एक आयत मुझे बहुत परेशान करती है और इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता। कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत 31 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ईसाइयों ने अपने पादरियों को अपना रब बना लिया था, लेकिन ए अल्लाह के रसूल हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी अपने पादरियों को रब का दर्जा नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, जिसका मफहूम है कि क्या इनकी कही हुई हर बात पर आंखें बंद करके तुम लोग यकीन नहीं करते थे? जिस चीज़ को वो हराम कहते तुम इसको हराम मान लेते और जिसको वो हलाल कहते तुम इसको हलाल मान लेते, इनसे कोई सवाल ना करते। अदी बिन हातिम ताई ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल बिल्कुल ऐसा ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो इनको रब मान लेना है, यानी अल्लाह के हुक्म की जगह इनके हुक्म को तरजीह देना। और आज भी मुसलमानों के अंदर ये लोग यही चाहते हैं कि मुसलमान कौम इनको इन्हीं पादरियों और रबैयों की तरह अंधाधुंध मान ले, कभी कुरान और हदीस को खुद से ना पढ़े, वरना इनकी अजारादारी, इनके चंदे और नजराने खतरे के अंदर पड़ जाते हैं। और इसीलिए ये अपने लोगों को कहते हैं कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। दरअसल इनकी नज़र में जो चीज़ गुमराही है दरअसल वो हमारी हिदायत है। जो लोग भी मेरी इस तरह की तनकीद पर दलाइल देने की बजाय गालम गलोच करते हैं, कोई लॉजिकल जवाब नहीं देते, मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि कल बरोज़े क़यामत आपकी कब्र के अंदर आप खुद जवाब देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप, कोई दूसरा आपकी कब्र के अंदर आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। फिर कब्र में मुनकिर नकीर को ये दलाइल देते रहना कि वसीला क्या होता है, कुरान पाक क्यों नहीं पढ़ा, इस पर अमल क्यों नहीं किया और क्यों गुमराही की मौत में मर गए। इसी जहालत की वजह से आज हमारी कौम की ये हालत हो चुकी है कि हर जगह पर बिदअत, गुमराहियाँ, तौम परस्ती आम हो चुकी है, मज़ारों पर सजदे हो रहे हैं। बुजुर्गान दीन की मन गढ़ंत करामात सुनाकर इनको पैगंबरों और माज़अल्लाह अल्लाह के भी बराबर खड़ा किया जा रहा है। और इनमें से अगर कोई एक भी शख्स कुरान पाक को पढ़ ले, इसको समझ ले, तो शिर्क करने से बेहतर वो अपनी जान देना बेहतर समझेगा। मगर हम देखते हैं कि नस्ल दर नस्ल इन लोगों ने हर सूरत ये गुमराही आगे ट्रांसफ़र करनी है ताकि बिजनेस को कोई खतरा ना हो। और सबसे बड़ा शिर्क तो इन लोगों ने आज वसीले के नाम पर शुरू किया है। आज कुरान पाक के दलाइल से इसको भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। और अगर कुरान पाक से यानी अल्लाह के हुक्म से भी ज़्यादा आपके पीर की बातें आपके लिए अहमियत रखती हैं तो वो आपको मुबारक हों, और हमें अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही काफ़ी हैं। अब ये वसीले के लिए दो तरह की टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी सफारिश और वसीला, यानी नेक शख्स की मौत के बाद इसका वास्ता अल्लाह को देकर सफारिश करवाना और इसको बीच में डालकर कोई दुआ मांगना। और ये मानते हैं कि ये अल्लाह और बंदे के दरमियान एक सीढ़ी के तौर पर, एक वसीले के तौर पर काम करता है, जिसे कुरान पाक ये कहकर रद्द कर देता है। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक तुमसे पूछें तो बता दो कि मैं इनके बहुत करीब हूँ। यहाँ पर तो किसी वसीले का कोई जिक्र नहीं। और फिर फरमाया कि तुम्हारे रब का हुक्म है कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी हर दुआ को कबूल करूंगा। अब यहाँ पर तो किसी वसीले, किसी सीढ़ी या किसी बुजुर्ग का कोई जिक्र नहीं आया। बिल्कुल।
आप ज़रा इमेजिन करके देखें कि क्या अल्लाह ताला की ज़ात इतनी सख्त और जालिम है कि वो अपने बंदों की बात बिना सिफारिश के सुनती नहीं है। ये लोग अल्लाह ताला की ज़ात को भी किसी दुनियावी बादशाह की तरह समझते हैं। फिर अल्लाह ताला सूरा बनी इसराइल के अंदर फरमाता है कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना वकील ना बनाओ। और इसके बाद सूरा यूनुस के अंदर फरमाता है कि ये लोग अल्लाह के सिवा जिनसे अपनी मुरादें मांगते हैं, ये ना तो इनको कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना कोई नुकसान, और कहते हैं कि ये हमारी सिफारिश करेंगे। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी बातें बताते हो जो वो ज़मीन और आसमान के अंदर नहीं जानता। ये लोग शिर्क की गंदगी को अल्लाह से मंसूब करते हैं, हालांकि वो अल्लाह इससे पाक है। आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है कि हर वो हस्ती जिससे ये उम्मीद लगाई जाए कि ये हमारी सिफारिश करेगी, दरअसल ये शिर्क है। अपना दिमाग खोलो, इससे बढ़कर अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर कैसे समझाए। और आप खुद बताएं कि जो बंदा ये कुरानी आयात पढ़ लेगा, क्या वो कभी इस पीर परस्ती, वसीले, इबादत और गुमराहियों के अंदर पढ़ सकता है? और यही वजह है कि अगर आम अवाम कुरान और हदीस को पढ़ ले, इसको समझ ले, तो ये इन लोगों की इल्मी मौत है। और यही वो गुमराही है जो कि इंसान को आखिर में बुत परस्ती की तरफ ले जाती है, जैसा कि इंडिया के मुसलमानों के अंदर ये बढ़ता जा रहा है। भक्ति हो रही है भाई, भाई शर्म नहीं आ रही सब करते हुए? ये शर्म नहीं आ रही? अल्लाह का खौफ है नहीं है? अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? ये तुम्हारी दुआ कबूल कर देगा है? बताना, बोल बोलो नवेद भाई, तू ही बोल दे, क्या कर लेगा ये ताजिया? बता भाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ये तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा? बता क्या कर लेगा ताजिया? बता भाई क्या करेगा ये? भाई बता तो क्या करेगा ये ताजिया? हमें भी तो बता, अल्लाह के अलावा किसके अंदर, अल्लाह के अलावा किस में हिम्मत है कुछ करने की? भाई बता तो, भाई बता तो, भाई बता तो। इसलिए अभी भी वक्त है कि अपनी आंखें खोलो, अपनी आखिरत की फिक्र करो और इन लोगों के हाथों ब्रेन वॉश मत हो, वरना क़यामत के दिन सिवाय पछतावे के कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन गुमराहियों से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। क्या बात है जी। लो जी मित्रों, इसी एक वीडियो जी बहुत ही सोहनी सी, बहुत वधिया डिटेल दे विच सी। एंड ते एक सलमान खान की क्लिप सी ना, ते देखो भी वो एक स्टार है ते उहनूं ये चीज़ करनी पैनी है ना, क्योंकि ਉਹਦਾ स्टारडम खतरे ਦੇ ਵਿੱਚ हो सकता है। ਜਿਹੜੇ लोग दूजे आ वो गुस्सा करनगे। सो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਖਰਤ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ठीक है। तो सब तो पहला अपना शरीर ही देख लो यार, कितना कॉम्पलैक्स डिज़ाइन है। मैं एक पॉडकास्ट किया सरदार जसविंदर सिंह जी प्रोफैसर ने एक, ठीक है, साढ़े इधर पटियाले दे, उन्होंने नाल मैं एक पॉडकास्ट किया, शूट किया पिया, बस जल्दी ही अपलोड हो जाऊगा अपने दूजे चैनल पर, सनमीत सिंह चैनल पर। असीं उत्ते बड़ियां डिटेल दे विच साइंस दीयां गल्लां कीतियां कि बॉडी की है, जिवें आपां अली मिर्ज़ा दी वीडियोज़ दे विच देखदे हां, गल्लां बातां सुणदे हां ना, ते गुरबाणी दे आधार ते भी स्पिरिचुअल लैवल ते असीं कित्थे खड़े हैं। सो सारियां चीज़ां भी एक बॉडी यार इन्ना कंपलैक्स डिज़ाइन है, कौन इनू बना लूगा? अज साइंस कभी भी अचीव नहीं कर पाऊगी ये चीज़, ठीक है। तो होर बहुत सारिया चीज़ां साइंस सिर्फ डिस्कवर करती है, सिर्फ अपन दसदी है कि भी ये चीज़ है, वो क्रिएट नहीं करती, ठीक है। तो देखो ये जो सब चीज़ां होंदियां ना, ये देखो रब की रज़ा च है, तो रब ने बनाइयां, रब ने खत्म करनी है। कोई भी बंदा जिहदे जिहड़ा तुहाडे वर्गा है, जिहदियां दो अखां, दो कन्न है, एक नक है, ठीक है, सिर ते वाल है, चाहे गंजा भी हो सकता है, वो चलो चॉइस है बंदे की। तो वो जिहदियां दो बाहां, दो हत्थ, सारा कुछ उवें ही है जिवें तुहाडे है, वो थोड़ी आखरत नहीं सुधार सकता, जां तुहानूं आफ्टर लाइफ वालियां गल्लां च ये नहीं कह सकता कि उत्थे मैं तुहाडा वकील बन जाऊँ, ठीक है। जां इस दुनिया दे विच भी वो तुहाडा कुछ नहीं सवार सकता, ठीक है जी। ये गल पल्ले बन लो भी फाइनैंशियली तौर पर चलो हो सकता कोई बंदा तुहाडी हैल्प कर दे, ठीक है, थोड़ा साथ दे दे, पर जे तुसी ये कहो कि तुसी उहदी पूजा करोगे, उहदे पैरी हत्थ लाओगे, तो तुसी उहनूं मन्नोगे चंगी तरह, तो तुहानूं दुनिया दे विच कोई दुख दर्द नहीं मिलूगा भाई, फिर तुहाडे नालों भोला इस दुनिया दे विच कोई होर बंदा है ही नहीं, ठीक है।
ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਲੋਕੀ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਜੈਨੀ ਹੋ, ਬੋਧੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਬਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਪੀ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਈ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ